हम चली ठाकुर पहरा, जब हम शरण प्रभु किया, जब हम शरण प्रभु किया,
शरण ठाकुर प्रभ तुमरी, इस राखो कृपा तार। जो आवत शरण ठाकुर प्रभ तुमरी, इस राखो कृपा तार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखो लाज मुरार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखो लाज मुरार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखो लाज मुरार। अब हम चली ठाकुर रहा, अब हम चली ठाकुर रहा। जब हम शरण प्रभु की जब हम शरण प्रभु की राख प्रभु भावे मान। अब हम चली ठाकुर रहा, अब हम चली ठाकुर रहा, अब हम चली ठाकुर रहा, अब हम चली ठाकुर रहा। सब किछ जानदा, सब किछ जान, किस आगे कीचे अरदास। विण बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीचे अरदास। किस आगे कीचे अरदास, किस आगे कीचे अरदास, किस आगे कीचे अरदास, किस आगे कीचे अरदास। बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीचे अरदास। बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीचे अरदास। बबीहा सगली धरती जे फिरे, बबीहा सगली धरती जे फिरे, उड़ चढ़े आकाश, उड़ चढ़े आकाश। सतगुर मिले जल पाइए,
तिस कै पास सब किछ तिस कै पास सब किछ तिस कै पास बिन बोलिया सब किछ जानदा किस आगे कीजे अरदास बिन बोलिया सब किछ जानदा किस आगे कीजे अरदास 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 बिन बोलिया सब किछ जानदा किस आगे कीजे अरदास बिन बोलिया सब किछ जानदा किस आगे कीजे अरदास ਨਾਨਕ ਘਟ ਘਟ ਏਕੋ ਵਰਤਦਾ ਨਾਨਕ ਘਟ ਘਟ ਏਕੋ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਨਾਨਕ ਘਟ ਘਟ ਏਕੋ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਵਿਣ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਆਗੇ ਕੀਜੈ ਅਰਦਾਸ ਵਿਣ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸ ਆਗੇ ਕੀਜੈ ਅਰਦਾਸ ਕਿਸ ਆਗੇ ਕੀਜੈ ਅਰਦਾਸ ਕਿਸ ਆਗੇ ਕੀਜੈ ਅਰਦਾਸ ਕਿਸ ਆਗੇ ਕੀਜੈ ਅਰਦਾਸ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। जल में जंती उपायन तीना विरोधी दे। नानक चिंता मत करो, चिंता किस ही है। जल में जमती उपायन तीना विरोधी दे। नानक चिंता मत करो। ओठ हट न चली, ना को किरस करे, ना को किरस करे। सौदा मूल न होई, ना को लय न दे, ना को लय न दे, ना को लय न दे, ना को लय न दे। नानक चिंता मत करो, चिंता किसी है। जल में जमती उपायन तीना विरोधी दे। नानक चिंता मत करो। आखिर चिंता नहीं करनी भाई। जे चिंता सताਉਂਦੀ है ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਆ ਕੇ ਚਿਮੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿੱਚ ਉਪਾਏ ਸਾਇਰਾ ਤਿਨਾ ਵੀ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਿੰਤਨ 'ਚ ਜੁੜੀਏ, ਜੋ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੇਠ ਧਨਾਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਨੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਨੀਮ ਜੀ ਜਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਮੁਨੀਮ ਬੜਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਧਰਮਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨੀਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੇਠ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਖਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ, ਜੇਕਰ 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਧਨ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੁਨੀਮ ਨੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੁਨੀਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੇਠ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਵੀ 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ 11ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਮੁਨੀਮ ਨੇ
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਈ ਖਾਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਤਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਹੋਵੇ, 11ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਈਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਠ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੁਨੀਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੁਨੀਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਮਕ ਖਾਦਾ ਸੇਠ ਜੀ, ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਲੋੜਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਰ ਆਟਾ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ। ਸੇਠ ਨੇ ਮੁਨੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਈ ਪਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਾਈਆ ਆਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਸ ਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਪਾਈਆ ਆਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸੇਰ ਆਟਾ ਉਸਨੂੰ ਸੇਠ ਨੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਇਹ ਸੇਰ ਆਟਾ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਈਆ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਤਨੇ ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ, ਸੇਰ ਆਟਾ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਟਾ ਇੱਕ ਸਿਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਾਈਆ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇਠ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲੈ ਜਾ, ਕੱਲ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇਰੇ। ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੇਠ ਜੀ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ ਉਸਨੇ ਮਰ ਥੋੜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਈਆ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੁਨੀਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੇਠ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਤਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੇਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਜਾਨੂੰ ਦੇਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੀ ਹੈ, ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤੀ ਉਪਾਇਨ ਤਿਨਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ। ਜੀਆਂ ਕਾ ਆਹਾਰ ਜੀ, ਖਾਣਾ ਇਹੋ ਕਰੇ, ਖਾਣਾ ਇਹੋ ਕਰੇ, ਵਿੱਚ ਉਪਾਏ ਸਾਇਰਾ, ਤਿਨਾ ਵਿਸਾਰ ਕਰੇ, ਤਿਨਾ ਵਿਸਾਰ ਕਰੇ, ਤਿਨਾ ਵਿਸਾਰ ਕਰੇ, ਤਿਨਾ ਵਿਸਾਰ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸਰੀ ਹੈ, ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤੀ ਉਪਾਇਨ ਤਿਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ।
चिंता मत करो, नानक चिंता मत करो, नानक चिंता मत करो, नानक चिंता मत करो। शुक्राना गुरुजी, करा तेरा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, करा तेरा शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी तेरा, हरदम शुक्राना, शुक्राना गुरुजी तेरा, हरदम शुक्राना। दिल करदा गुरुजी, करा तेरा लख लख शुक्राना। ओ दिल करदा गुरुजी, करा तेरा लख लख शुक्राना। तुसा निवेआ नू अपनाया गुरुजी, तुसा निवेआ नू अपनाया, हर रोग सादा भुलाया, सेवा चरणा विच पाया गुरु जी तेरा लख लख शुक्राना। हो दिल कहदा गुरु जी, करा तेरा लख लख शुक्राना। दिन रात असी माया दे विच सी लिथड़े होवे, दुनिया दे मंदड़े कर्मा विच सी जकड़े होवे। दिन रात असी माया दे विच सी लिथड़े होवे, दुनिया दे मंदड़े कर्मा विच सी जकड़े होवे। तुसा सच्ची राह विखाई, तुसा सच्ची राह विखाई, हर चिंता फिक्र मिटाई, किती साडी भी सुनवाई गुरु जी तेरा लख लख शुक्राना। हो दिल करदा गुरु जी, करा तेरा नित नित शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, करा तेरा शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, करा तेरा शुक्राना गुरु जी। कुर्बान तेरे मैं जावा मेरे सतगुर प्यारे, चरणी लग के तेरे ते होगे वारे न्यारे।
कुर्बान तेरे मैं जावा मेरे सतगुरु प्यारे चरणी लग के तेरे ते हो गए वारे न्यारे संगता दी आस पुजाई संगता दी आस पुजाई हर एक पुल चुक बख्शाई नित खैर खुशी दी पाई गुरु जी तेरा लख लख शुकराना हो दिल करदा गुरु जी करा तेरा नित नित शुकराना शुकराना गुरु जी करा तेरा शुकराना गुरु जी शुकराना गुरु जी करा तेरा शुकराना गुरु जी ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय आइए गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय
शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी। जय शिव ओंकारा, जय हर शिव
शिव ओंकारा, गज हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, वरदावी नारा, ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। कोटि कोटि Thank you, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी, शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना। जय अनंतम गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी आरती ले लीजिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आज के इस सत्संग का तहे दिल से आपको शुक्राना करते हैं और सारी संगत को भी बहुत बहुत शुक्राना आज के सत्संग का। जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। गुरु जी सबको ब्लेस करे, बस कृपा बनाए रखना गुरु महाराज, ऐसे ही बस आगे चलता रहे, सब ठीक ठाक रहे गुरु जी। जय गुरु जी, सबको ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। लव यू गुरु जी, लव यू संगत जी। जय गुरु जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी आज के सत्संग का। संगत जी, एक ऑडियो बहुत दिनों से आया हुआ है, वो फ़ोनों के गड़बड़ के कारण मैं लगा नहीं पाई। वंदना आंटी ने भेजा है जम्मू से। जी संगत जी, मैं वंदना बोल रही हूँ जम्मू से। संगत जी, आज मैं आपको फिर से एक बड़ा क्यूट प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। आज 5 फरवरी 2021 की बात है कि जैसे मैं सुबह उठी तो मेरा अमृत वेला मिस हो गया। 7 बज के मैं फटाफट, फिर आरती चल रही थी, मैंने अटेंड किया। थोड़ा सा ये लगा कि कुछ खाली खाली, चलो फिर भी गुरु जी को कोई वहम नहीं, गुरु जी को माथा माथा टेका। संगत जी, सुबह मैं गाड़ी निकालने लगी ऑफिस के लिए, रिवर्स कर रही थी तो मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। तो उस वक्त गुरु जी का ही भजन चल रहा था, तो फिर मैंने शुक्राना किया गुरु जी का, तो मैं ऑफिस को चल पड़ी। संगत जी, आज क्या दिन था मेरे पे मुझे नहीं पता। मैं ऑफिस गई, एक बार नहीं 2 बार मुझे, मेरी गलती थी ही नहीं मैं कहूँगी, लेकिन मुझे डांट पड़ी और मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं कहने लगी कि देखो कैसी, कई बार होता ही है, हम लोग जो जॉब करते हैं वो जानते हैं कि ऐसा होता है। कई बार मेरी गलती नहीं भी होती है तो कई बार डांट पड़ जाती है, फिर हम कह भी नहीं सकते, नौकरी होती है जो भी है। तो मेरे पर कुछ ऐसे जॉब में मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं बड़ी अपसेट सी हो गई एंड थोड़ा सा मूड खराब। वापस जब आ रही हूँ, ड्राइव कर रही हूँ तो आंखों में आंसू भी हैं जब मैं रिवाइंड कर रही हूँ। और फिर मैं कह रही हूँ गुरु जी को कि गुरु जी सब तुसी देखना है, इन्होंने भी तुसी संभालना है, जो भी है। चलो ऑफिस में चलता है, कभी अप डाउन आते हैं, ये नौकरी इतने सालों की करते तो होता है ये सब, इट्स ओके। तो ये भी चल रहा है माइंड में, लेकिन नॉट हैप्पी। तो मैं कह रही हूँ आज यार पता नहीं क्या मेरा दिन चढ़ा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो हो रहा है ऐसे होता है ना कि हम सोनिया और आंटी का एक भजन सुनते हैं शुक्राना, तो उसमें वो कहते हैं कि रोते को हंसाया आज गुरु जी शुक्र करा। सच में संगत जी, ये लाइन मेरे लिए ऐसी सच्ची हुई। आई वाज सो अपसेट। और मैंने शाम को देखा कि सोनिया गुरु जी के लिए हमारे पेज के लिए एक मैसेज इनविटेशन आ गया गगन सैनी अंकल के सत्संग का रात को 8 बजे। तो जब मैं बड़ी अपसेट थी, इवन चाय पी, जब मैंने देखा ना तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं स्माइल मेरे फेस पे, क्योंकि ये इस बात के लिए तो नीरजा आंटी भी एविडेंस है कि मैं हमेशा लिखती हूँ कि आंटी गगन सैनी अंकल को बोलें कि सत्संग करें। और आंटी हमेशा मुझे एक ही जवाब देते थे कि जब गुरु जी की मर्जी होगी वरना आंटी तब होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि गुरु जी ऐसे, जैसे हम बच्चे हैं ना, तो हम बच्चे जब हमारे अपने बच्चे किसी बात पे अपसेट हो जाते हैं स्कूल से या किसी से, तो हम क्या करते हैं, उनको खुश करने के लिए उसकी फेवरेट डिश या उसे कुछ सरप्राइज छोटा सा गिफ्ट देंगे या कुछ देंगे
ताकि उसके फेस पे जो अपसेट है उसके फेस पे स्माइल आ जाए और कि हम बोले कुछ नहीं होता, ये सब चलता है लाइफ में और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जस्ट लाइक दैट गुरुजी ने क्या किया, मेरा मूड बहुत ख़राब था और मैं सच में अच्छा फील नहीं करी थी। मैं कहती कि दुनिया कैसी है गुरुजी, कैसे चलना है, तो इतना सोच ही रही थी। तो गुरुजी ने मेरे को एक सरप्राइज़ गिफ्ट दिया जो मैं बहुत पसंद करती हूँ। गगन अंकल के सत्संग को, बहुत डिवाइन सत्संग होता है उनका, बहुत अच्छा लगता है सुनना। तो जब वो मैसेज देखा तो मेरे मुंह में स्माइल आ गई और उसके बाद मैं गुरुजी को यही कहने लगी कि गुरुजी सच में रोते को हंसाया आज, गुरुजी शुक्र करा। तो इतनी खुश हो गई, इतनी तैयारी होने लगी कि नहीं 8 बजे मुझे जोत जलानी है क्योंकि सत्संग करना है। फिर बड़ी एक्साइटमेंट में सारी तैयारी होने लगी, अंकल का सत्संग शुरू हो गया। फिर मैं सबको बोल दिया बेटी को कि आज तुम अपनी मर्जी का जो मर्जी करो। तो एकदम से मैं ना जैसे गुरुजी के आगे बैठ गई और वो डिवाइन सत्संग सुना, कमेंट्स भी किए उसमें। तो एकदम इतनी खुशी, एक इतना आनंद। और आज मैं सोने से पहले ये सत्संग बना रही हूँ मुझे, और मैं निर्जा आंटी को बोलूँगी अगर वो सुन लेंगी तो हमारी सोने गुरुजी संगत के साथ ज़रूर शेयर करें कि हम उदास हो जाते हैं ज़िंदगी में, लेकिन गुरुजी ये एहसास दिला देते हैं कि वो हमारे पिता हमारे साथ हैं। अगर हमारा मूड ख़राब है हमें हंसा भी देते हैं। तो और मैं क्या बोलूँ संगत जी, मैं आज मेरा मूड ख़राब था, लेकिन उस सत्संग के बाद मैं इतनी खुश हो गई। मैं कब से चाहती थी, और एक सरप्राइज सत्संग, एक सरप्राइज गिफ्ट निकाल के समझो निर्जा आंटी के थ्रू, सैनी अंकल का मेरे जो फेवरेट सत्संग होते हैं तो बहुत मज़ा आता है उसमें, एक डिवाइन फीलिंग आती है और हम लोग खो जाते हैं गुरुजी के सत्संग में। तो वो हुआ तो मैं एकदम हैप्पी हो गई और एक एहसास हो गया कि जो भी हो रहा है गुरुजी की मर्जी पे। कई बार हमारा ये नहीं कि हमारे साथ फेवरेबल ही हो, अगर नहीं भी होता है तो वो भी गुरुजी की मर्जी से ही हो रहा है। और वी नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग, एंड गुरुजी इज़ विद अस। एंड वंस अगेन गुरुजी ने मुझे वो एहसास दिलाया और मुझे कल थोड़ी फूलों की खुशबू आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड शुक्राना गुरुजी, थैंक यू निर्जा आंटी और थैंक यू गगन सैनी अंकल जिन्होंने इतना अच्छा डिवाइन सत्संग किया। और निर्जा आंटी आपके थ्रू गुरुजी हमें इतने प्यारे प्यारे सरप्राइज गिफ्ट भी देते हैं। तो गुरुजी ब्लेस यू गगन अंकल एंड ऑल द संगत फॉरएवर। थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। थैंक यू वंदना आंटी। एंड सॉरी ये सत्संग 2-3 दिन से आया हुआ था तो मैं लोड ही नहीं कर पाई। और संगत जी आप बिलीव करें कि ये जो सत्संग आप लोग रिकॉर्ड करके भेजते हैं, आंटी ने कहा निर्जा आंटी सुन ले और इसे आगे गुरुजी को फॉरवर्ड। प्लीज़ मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देना चाहती हूँ, आप जो भेजते हो वो आपने गुरुजी को सुनाने के लिए भेजा है, निर्जा आंटी को सुनाने के लिए नहीं भेजा है। सो गुरु जी के दरबार में जो चलता है आपने बड़े भाव से वो रिकॉर्ड करके भेजते हो, सारी संगत के लिए होता है। और हर ऑडियो में चाहे वो सत्संग हो, भजन हो, कोई भी माध्यम हो, उसमें कोई ना कोई मैसेज छुपा होगा गुरु जी का, किसी ना किसी संगत के लिए। दुनिया के किसी कोने में वो बैठी होगी, गुरु जी वहां तक उसको पहुंचा देंगे। सो ये इनके थ्रू ही मिलता है, इसीलिए वी आर नो वन टू लिसन फर्स्ट। ये जो आपकी चीजें हैं इस पे पहला अधिकार गुरु जी का है। सो गुरु जी, इसीलिए मैं कोशिश यही करती हूँ ना, मैं लोड ही नहीं करती हूँ। लोड करूंगी तो सुन लूंगी पहले, इसीलिए नहीं लोड करना है। सुबह जब आरती होती है उसके बाद मैं अपना फोन व्हाट्सएप ओपन करके उसको प्रेस करती हूँ ताकि वो लोड हो जाए, ऑडियो या जो भी आपने भेजा है, और वो डायरेक्ट चले। मैं भी फर्स्ट टाइम गुरु जी के साथ ही मेरे को सुनना है, क्योंकि हम लोग सब संगत है। संगत जी जैसे आप सुन रहे हैं ऐसे हम भी सुन रहे हैं। सो और क्योंकि मुझे थोड़ी चेक करना है, हु एम आई, नथिंग इन फ्रंट ऑफ गुरु जी। हम लोग कुछ नहीं है, इसीलिए जो भी करना है वो गुरु जी ने करना है। आप जो अपने इतने भाव से आप अपना शुक्राना भेजते हैं वो गुरु जी के लिए शुक्राना है, तो गुरु जी ही उसको सुनेंगे। इसमें किसी का कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आपके भाव चाहिए। आप अपने भाव से उसे रिकॉर्ड करें, गुरुजी खुद ब खुद उसको लगवा देंगे, सुनवा देंगे सबको। और
कहते हैं ना, बिन बोले या तू सब कुछ जानता, वो बिल्कुल सही बात है। गुरुजी बिन बोले अगर हम कुछ नहीं भी मांगते गुरुजी से तो भी वो उसको पूरा करते हैं, उन्हें पता है, क्योंकि वो हमारे माई बाप हैं। आज जैसे पेरेंट्स होते हैं वो कितना ध्यान रखते हैं। और सच में संगत जी मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, जो उन्होंने कल इतना बड़ा सरप्राइज हमको दिया। सच में मैं बिलीव नहीं कर सकती हूँ संगत जी। कल मैंने आपको सत्संग में, जो शाम का सत्संग हुआ वो अनडिसाइडेड था, बड़ा टू द मतलब बड़ा शॉर्ट नोटिस पे, मैं खुद मेरे लिए बहुत शॉर्ट नोटिस था उसको करना। और जब वो केक वगैरह आ गए तो मैंने कहा गुरुजी कमाल है, बंदा एनिवर्सरी में एक केक काटता है, 2 काट लेगा हद से हद 4 केक। मैंने कहा चलो जय गुरुजी। और संगत जी मैंने आपको कल दिखाए भी थे, यहाँ पे पड़े हुए थे वो केक्स, अलग अलग जगह से आए थे वो। और जब सत्संग खत्म हो गया, एक डिब्बा हमने खुला था, वो मैंने बाद में रियलाइज़ किया वो तो ड्राई केक था, जो शायद ईरा आंटी ने भेजा था बड़े केक के साथ, डबल केक भेजा था उन्होंने। और उसके बाद जब संगत चली गई, मैं सामान अपना ठीक कर रही थी तो डाइनिंग टेबल पे संगत रख के चली गई पीछे। मालूम नहीं कौन संगत थी, मुझे नहीं पता किस संगत ने मतलब बहुत थोड़े से लोग ममता आंटी ने बुलाए थे, और मुझे नहीं पता कौन आया कौन गया, मैं तो सत्संग में बैठी हुई थी। बाद में जब डाइनिंग टेबल में क्लियर कर रही थी तो वहां पर 2 डिब्बे और ब्राउनीज के पड़े हुए थे वो केक के। सो मैं अंकल को रात को हंसी, मैं कहा कमाल है गुरुजी, आज है 7 फरवरी और 7 केक आए हैं एनिवर्सरी पे, और गुरुजी भी 7 नंबर है। सो समथिंग को रिलेटेड विद 7। और मुझे नहीं पता गुरुजी का क्या इशारा है इस तरफ, बट 7 केक, इट्स अमेजिंग अमेजिंग। मैं अभी अंकल को हंस रही थी, मैंने कहा कितनी भी बड़ी पार्टी कर ले कोई बंदा, कोई ऐसा कपल नहीं होएगा जिन्हें 7 केक खाते होंगे अपनी एनिवर्सरी पे। सो ये कमाल तो गुरुजी कर सकते हैं, ऐसी पार्टी तो कहीं होती और ऐसी पार्टी कमाल की पार्टी, मतलब गुरुजी के साथ, गुरुजी के साथ, गुरुजी की संगत के साथ, सच में। और मैं बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ ममता आंटी का, ईरा आंटी का, और आंटी का नाम नहीं मुझे पता, यमुना नगर से जिन्होंने वो केक, शीतल आंटी हैं वहाँ पे, बट उन आंटी का नाम नहीं मुझे पता। बट थैंक यू आंटी, अंकल थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और सच में बोलूँगी, और अब मेरे को फाइंड आउट करना है, क्योंकि संगत तो यहाँ बहुत कम थी, तो वो 2 डिब्बे कौन लेके आया मुझे नहीं पता अभी तक, वो 2 बॉक्स कहाँ से आ गए टेबल पे, कोई बताया भी नहीं किसी ने। और मैंने कहा हाई बता देते तो मैं गुरुजी को, तो हम उसको आज भोग लगाएंगे गुरुजी को। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लव यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग यू डू, एवरीथिंग। छोटी से छोटी बात के लिए, इतने सरप्राइजेस देने के लिए। और आप देखिए कि कैसे गुरुजी ख्याल रखते हैं हर चीज का, और हम ऐसे ही चिंता करते रहते हैं। इंसानों की तो उन्होंने करनी ही करनी है। जब एक पपीहे को, एक शब्द में था ना कि उसको भी बारिश के थ्रू उसको वो मिलता है, वो अरदास करता है, उसको भी नहीं मतलब ख्याल रखते हैं। थैंक यू। और मतलब हर चीज का ध्यान रखते हैं, तो वो हमारा क्यों नहीं रखेंगे। चिंता ना करें, चिंता नानक चिंता मत कर। सच में जो शब्द चलते हैं उसी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ आंसर्स मिलते हैं। इसीलिए गुरबानी सुने। जो भी मैं कहती हूँ, गुरुजी के पास बैठ के आप कुछ भी सुनो, जो भी सुनो, आपको हर चीज में गुरुजी दिखाई देंगे। रियल में संगत जी बोल रही हूँ। अभी जैसे पहले हम लोग बहुत पिक्चरों के गाने वाने सुनते हैं, पुराने गाने सुन लिए, ये सुन लिया, गजलें सुन ली। अभी अगर कोई लग जाता है ना, वैसे तो अभी शब्द ही लगते हैं, बट अगर लग जाता है ना तो वो हर जगह वो गुरुजी ही दिखाई देते हैं, हम उसको कोरिलेट कर लेते हैं, गुरुजी की हो जाती है, और लगता है कि हाँ वो गुरुजी के चल रहा है। तो ये चाहे कोई बॉलीवुड का हो नंबर या कोई भी हो, पुराने गाने चलते हैं तो लगता है जैसे गुरुजी से वो कनेक्ट हो जाता है। और तो ये बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है जब हम हर चीज में उन्हें फील करने लग जाते हैं, क्योंकि तब हमें महसूस होता है कि वो हर पल हमारे साथ हैं, हर पल सिर्फ उन्हें फील करें। प्यार के गाने तो लव के गाने आते तो लगता है जैसे गुरुजी से प्यार करते।
अंकल की बात सुन लीजिए, उनको हर गाने में बस गुरुजी प्यार। मेरे को बोलते हैं, कहते इतना प्यार तो मैंने तेरे से भी नहीं किया जितना मैं गुरुजी से करता हूँ। सो मैंने भी सेम ही आंसर दिया, मैं कहा सेम विद मी। सो वी लव यू गुरुजी सो मच। और ये पता नहीं बार बार बोलने को मन करता है। वैसे तो कहते हैं ना, जिससे आप प्यार करते हो ना उसको बोलते नहीं है, वो आप पे ही फील होता है, अंदर से आता है वो। बट मन करता है कि गुरुजी को बोलें, अच्छा लगता है, खुद को अच्छा लगता है। एक्चुअली हम खुद को अच्छा फील कराने के लिए बोलते हैं ये सब, गुरुजी को तो पता है। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, इतना ध्यान रखने के लिए। संगत जी बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं गुरुजी। आप सिर्फ उन पे ट्रस्ट करें, उन पे फेथ, और यही अरदास हमेशा करें कि ये फेथ चाहे कोई भी सिचुएशन हो, गुड बैड एनीथिंग इन योर लाइफ, आपकी वो सिचुएशन जैसी भी हो, बस गुरु जी पे जो विश्वास है वो हमारा ना टूटे, कभी ना टूटे। और संगत जी बिल्कुल भी कोई चिंता मत करें, बैठे हैं वो महाराज हमारे और वो ही केयर करेंगे। सो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। सच में बोल रही हूँ, जब सिचुएशन खराब होती है तो हमारा सबसे पहले ब्लेम किसको लगाते हैं? भगवान को। हमारे साथ ऐसा हो गया, भगवान की मैं इतनी पूजा करती हूँ, ये करती हूँ, भगवान ने कुछ नहीं किया, मेरा कुछ नहीं हो सकता। और ये बड़ी नेचुरल सी बात है जो हमारे मुंह से निकलती हैं। बट प्लीज, ये सबके लिए होता है संगत जी, मैं कोई अलग नहीं है, हम लोग या आप सबके साथ सेम, ये हमारा ह्यूमन नेचर है। डगमगा जाता है कि हमारा जो विश्वास होता है वो डोलने लग जाता है। उस वक्त लगता है कि भगवान कुछ नहीं है, वो नहीं सुनता है, क्योंकि हम ना कोई बुरी चीज देखना ही नहीं चाहते हैं कि लाइफ में सब अच्छा ही अच्छा हो। जब करते हैं तब नहीं याद आता। जब हरकतें करते हैं तब नहीं याद आता। सो इसीलिए संगत जी, कोई भी सिचुएशन हो, बैड हो गुड हो, मुझे पता है जब किसी के ऊपर बहुत बैड सिचुएशन से वो निकलता है, उसके ऐसा माहौल बन जाता है, उस वक्त उसे बहुत, इसीलिए गुरुजी हमें सत्संग में बिठाते हैं ताकि हमारे में इतना सब्र आ जाए कि हर सिचुएशन का हम डट के सामना कर सके। और उन्हें सिर्फ याद रखें, क्योंकि अगर उन्होंने बैड सिचुएशन में डाला है, जैसे वंदना आंटी के साथ हुआ कि उनको डांट पड़ी ऑफिस में, ये हुआ, कोई बात नहीं संगत जी, शायद उसमें भी कोई भलाई होगी, क्योंकि हो सकता है जिसने उनको डांटा उसका कोई कर्जा होगा उसके ऊपर, उसने अपना बराबर कर लिया हिसाब किताब। दुख होता है तो खुद का थोड़ी देर के लिए जरूर फील होता है कि यार मैं ही क्यों, उसकी वैल्यू पड़ती है, मैं ही क्यों, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। कई बार अपनी बिना गलती के भी हम लोगों को बुरा भला कहा जाता है। सो प्लीज उसको कभी भी दिल पे ना लें और अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखें, क्योंकि जो वो करेंगे अच्छा ही करेंगे। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस ऐसे ही अपनी कृपा वाला हाथ सब पे बनाए रखें, सबका साथ हो। सच में आप लोगों का साथ है तो हम लोग सब साथ, यही फील करती हूँ मैं। आप लोगों ने जो साथ निभाया है अब तक, ये बस हमेशा निभाते रहे। हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर जो इस रास्ते पे चल रहे हैं, इस जर्नी पर, वो ऐसे ही चलती रहे। उनका साथ है, और विश्वास मजबूत रहे। विश्वास गुरुजी के पास कभी, संगत जी जब मैं नई नई जुड़ी थी गुरुजी से, तो मेरे मन में पता नहीं बार बार आता था कि भगवान के ऊपर मतलब हम कैसे ट्रस्ट करें। अभी तक तो मेरे साथ इतने सालों में बुरा ही बुरा हो रहा है, कुछ तो अच्छा हुआ नहीं है। अभी मैंने सारे दर, कहते हैं ना, सारे दरों की मत्था टेक लिया, पर मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला, कहीं से भी मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, वो पीस नहीं था। और मैंने जब गुरु जी के माथा टेका जाके चरणों में, तो एक ही बात बोली कि ये बस मैं इसके बाद और कहीं नहीं जाऊंगी। इसलिए नहीं हुआ कि तुम दर दर भटक रही थी, तो एक को रखोगे तो ही। हाँ शायद ही इज राइट संगत जी, अंकल इज, कि मैं दर दर भटक रही थी। हम लोग क्या करते हैं, एक जगह जाते हैं, वहां पर वेट करते हैं, हफ्ता भर नारियल चढ़ाएंगे, हफ्ता भर पूजा करेंगे, फिर देखेंगे काम नहीं हुआ, चल दूसरे मंदिर में, दूसरे भगवान में। हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, हम दूसरी जगह चले जाते हैं, ऐसे करके तीसरी जगह चले जाते हैं। फिर किसी ने बोल दिया भैया मेरा अच्छा हुआ है, चल तू भी यहाँ चल, तो हम ऑलरेडी इतने दुखी होते हैं कि हम वहां पहुंच जाते हैं। सो ऐसे करते करते हम दर दर भटकते हैं। दर दर भटकने के बाद जो हमें अल्टीमेट जगह मिलती है वो है गुरु जी के चरण। तो जिन्होंने गुरु जी के चरण पकड़ लिए उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब वो चाहे हमें जैसे भी रखें, उनकी रजा में राजी, जो करना है हमारे साथ करें, उन पे छोड़ दीजिए, बट उनके चरण कभी मत छोड़िए।
इसीलिए कस के पकड़ के रखें, चाहे वो जिन पर जो भी विश्वास करे। करो ना, वो पक्का रखो। पक्का विश्वास, बिल्कुल पक्का वाला बोलते हैं ना। और बिल्कुल वो कब होगा, जब आप उन्हें दिल से याद करेंगे, उन्हें प्यार करेंगे और हमेशा अपने साथ रखेंगे उनको। बिना कंडीशन के ही अनकंडीशनल लव, व्हाट ही वांट्स। हमारा पता है क्या होता है, हम जब किसी की पूजा करते हैं या प्यार करते हैं तो हमें होता है कि इसके अगेंस्ट में हमें क्या मिल रहा है, इसके अगेंस्ट में क्या मिल रहा है, वो भी मिल जाए मेरे को। बट यहाँ पर सिर्फ आपको बिना कोई कंडीशन के गुरुजी को प्यार करना है, अपने आप ही मिल जाते। क्योंकि बाकी की रहमतें अपने आप हो जाएंगी, अपने आप आपकी झोली में आके गिरेंगी। सो बहुत शुक्राना करें गुरुजी का, उन्होंने आपके सिर पे हाथ रखा, उन्होंने आपको परमिशन दी है सत्संग में बैठने की, यहाँ सुनने की। ये सब उन्हीं की आज्ञा से और उनके ही बोलूंगी प्रताप से ये सब हो रहा है। अदरवाइज हम ह्यूमंस में इतनी ताकत नहीं है जो हम कुछ कर सकें। आराम से सुबह सुबह गुरुजी घर में बैठे बैठे सबको आराम। सोचो आप, एक गुरुजी अपने गद्दी पे जहाँ भी उनका दरबार लगता है, कहते हैं गुरुजी वहाँ हाजिर नाजिर होते हैं और हर वक्त हर सत्संग में वो मौजूद होते हैं, चाहे वो छोटा सत्संग हो बड़ा, छोटा बड़ा हम लोगों ने बनाया है। गुरुजी के लिए तो सब सेम है, ये हम लोगों की इंसानी फितरत है। इतने पेज बन गए कि अभी घर में बैठे बैठे आराम से सारा बहुत सारे लाइव होते हैं संगत जी। आप जहां भी जुड़े ना, दिल से जुड़े। ऐसा नहीं है किसी ने कोई आपको नंबर नहीं दे देने हैं, तमगे नहीं पहना देने हैं कि आपने यहाँ इतना अटेंड किया या वहाँ इतना। ये आपने अपने लिए अटेंड करना है, आपने किसी और के लिए नहीं करना है। ये मैं अक्सर बोलती थी संगत जी, जब मैं काम अपने बिजनेस में थी तो मैं लोगों को बोलती थी, यू आर नॉट वर्किंग फॉर मी, यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ। आप मेरे को नहीं खुश कर रहे हो, आप अपने आप को खुश करो, आप अपनी सेटिस्फेक्शन देखो। आपको अगर मिलती है जॉब सेटिस्फेक्शन, वो आपके लिए है, आपकी ज़रूरत है। इसीलिए आप जितना खटोगे उतना मिलेगा। पावर हमारे हाथ में है कि महीने का चेक कितना होना चाहिए, हमारा कितना चाहिए हमें, ये डिसीजन हमारा है। ये मैं आपको बिजनेस की बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो भाषा आती थी उस वक्त, और अब शायद मैं भूलती जा रही हूँ बिजनेस, क्योंकि बोलते हैं ना हम बिजनेस नहीं कर रहे, अब हम हर के व्यापारी हैं। सो बिजनेस तो हम अभी भी कर रहे हैं, बट हर का कर रहे हैं, नाम का कर रहे हैं। पहले काम करती थी, लोगों को जोड़ती थी बिजनेस के लिए, लेडीज़ को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए जोड़ती थी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देने के लिए। बट अब मेरा काम तो वही गुरुजी ने रखा है, नथिंग चेंज। अब लोगों को जोड़ रहे हैं गुरुजी के साथ। सो आप भी इस काम में लगिए, जितनी ज़्यादा संगत को जोड़ सकते हैं गुरुजी के साथ जोड़िए, क्योंकि जो जोड़ता है वो भी ब्लेस होता है, जो जुड़ता है वो भी ब्लेस होता है। सो दिस इज ऑल गो हैंड इन हैंड। और ये सबसे बड़ी सेवा है, दिस आई हैव रेड समवेयर, कि जब आप नई संगत को जोड़ते हैं तो पता नहीं आपके कितने कष्ट कटते हैं और कितने जन्मों का। हाँ, उस दिन ही थोड़े दिन पहले ही मैंने ये पढ़ा है कि जब एक संगत को आप अमृत वेला के साथ जोड़ते हैं तो आपको 1 साल के अमृत वेला का फल मिलता है। दिस इज, किसी ने लिखा हुआ था, आई डोंट नो, बट आप फल की चिंता मत करें, क्योंकि हमारा काम है ज्यादा से ज्यादा गुरुजी का गुणगान होना। इसीलिए फल तो हम ऑटोमेटिकली गुरुजी झोली में डाल देंगे। और हमें चाहिए भी क्या, खाली बस गुरुजी हमारे दिल में वास करें, और कुछ नहीं चाहिए। और कभी भी हमें ऐसी सिचुएशन में ना डालें जिससे हम गुरुजी से दूर हो जाएं। इसीलिए बस ये अरदास करें, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत से सिचुएशंस आती हैं जब हमें लगता है कि हम पीछे हट रहे हैं, जा रहे हैं हम दूर। बस यही प्रार्थना करें गुरुजी से कि हम हमेशा जुड़े रहें। हमारी जो आत्मा की जो तार है ना, वो गुरुजी के साथ तार जुड़ी रहे, उसको कोई काट नहीं सके। XYZ इतना स्ट्रांग आपका बिलीफ होना चाहिए अपने गुरु पे। सो इसी नोट के साथ आज्ञा लीजिए गुरुजी से कि ये तारें हमारी जुड़ी रहें गुरुजी के साथ हमेशा हमेशा के लिए, और गुरुजी हमारी बाह कस के पकड़ के रखें ताकि हम डगमगाए ना, हिले ना अपने स्थान से, ढीठ बन जाइए। इसमें बोलते हैं ना, बड़े ढीठ होते हैं, ढीठ लोग वो होते हैं जो बिल्कुल जिद्दी कि नहीं मैंने नहीं जाना। और गुरुजी के लिए जिद नहीं, गुरुजी के लिए दीवानगी चाहिए, आपको पैशन चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना वर्क, जब हम अपने काम में होते हैं तो वहाँ क्या चाहिए होता है, फोकस, डिटर्मिनेशन, पैशन, तब आप सक्सेस मिलती है आपको। ऐसे ही यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको
प्यार चाहिए, दीवानापन दीवानापन चाहिए, झल्लापना चाहिए, फकीरी शदाई फकीरी और फकीरी चाहिए। फकीर जो होते हैं उनको किसी चीज की चिंता नहीं होती है, आज खाना मिल गया कल क्या मिलेगा पता नहीं। तो ऐसे फकीर चाहिए गुरुजी को, क्योंकि हम सब गुरुजी के दरबार में एक भिखारी की समान है तभी रहमत होती। और भिखारी बन के ही रही है। वी आर ऑल जीरोज इन फ्रंट ऑफ हिम। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, हमारी जिंदगी में आने का, हमारा साथ में रहने का शुक्राना गुरुजी, चरणों में रखने का शुक्राना। ये तो हम बोलते हैं गुरुजी हमें अपने चरणों में जगह दीजिए, बट वी डोंट नो कि गुरुजी ने हमें कहाँ तक जगह दी है। और एक बात जाते जाते मुझे याद आ गई चरणों से, मुझे आंटी ने बताई थी, रेखा आंटी ने, मंडी वाले जिनको गुरुजी मास्टरनी आंटी बोलते थे, उन्होंने बताया था ऐसे ही। एक दिन कहते हैं गुरुजी के दरबार में अगर कोई आ जाता था ना, उन्हें तो पहले ही पता चल जाता बाहर से कौन आ रहा है, वो अंदर सिंहासन पे बैठे होते थे। तो कहते थे सेवादारों को, ए बंदे हूं लंगर करा और पेच। एक ये बात बताई उन्होंने मेरे को। और दूसरी बात उन्होंने बताई, कहते जद गुरु जी उन्होंने फील हुंदा सी ना, ते पता की करते सी, बैठे हुंदे सी अपने सिंहासन ते, अपने पैर ना अपनी लूंगी दे अंदर कर लेंदे सी। मेरे को सुन के बड़ी हंसी आई। मैं कहा हाय आंटी ऐसे क्यों? कहते बस नहीं मत्था टेकना सी उन्हें, उन्होंने पैर ही अंदर कर लेते लूंगी दे अंदर। मेरे को इतनी हंसी आई ना ये सुन के कि कमाल है गुरुजी, आपको सब पता है सामने वाली कैसी सोल आपके पास आ रही, क्योंकि उन्हें हमारे शरीर से कोई लेना देना नहीं है। हम सुंदर है, हम काले हैं, गोरे हैं, उनको कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ हमारी सोल से लेना देना है, क्योंकि हम सब कीचड़ से भरे हुए जाते हैं उनके पास। और ये सुन के बड़ी हंसी आई थी मेरे को। तो वो थैंक यू शुक्राना। और ये मैंने सुना है, मेरे को आज बात याद आ गई चरणों से। तो बहुत इसीलिए बोलते हैं ना कि हमें गुरुजी अपने चरणों में रखे, और हमें नहीं पता कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। सो इसीलिए गुरुजी से बोले, यही बोले, हरदम बोले थैंक यू। एक चरणों से ना, एक उनके, मैं अभी चरण ही देख रही हूँ तो मुझे एक बात और याद आ गई। उन्होंने बताई थी ऐसी, गुरुजी की एक हैबिट बताई थी उन्होंने मेरे को। कहते गुरुजी जब एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते थे ना, तो वो हाथ से नहीं दरवाजा खोलते थे, वो ठुड्डा मारते थे पैर के साथ। ठुड्डा मतलब पैर से खोलते थे। और ये चीज संगत जी, इसका ही मुझे इससे रिलेटेड आ रहा है। जिस दिन हमारे घर सत्संग था, उस दिन अमृत वेला सत्संग था, कौन से मंथ का वो मुझे याद नहीं है, बट उस दिन रेखा आंटी ने आना था, वो यहीं थे जलंधर। तो उस दिन अंकल ने जो वो दरबार लगाया था, उसमें जो गुरुजी का स्वरूप लगा था वो येलो वाला लगा था, और उसमें गुरुजी एक पांव के ऊपर दूसरा पांव करके बैठे हुए हैं। तो उनका वो जो दूसरा ऊपर वाला पांव है ना, वो हमें दिख रहा है। तो जैसे लगता है साक्षात, जैसे आप लोगों ने बहुत लोगों के घरों में वो येलो वाला स्वरूप होगा। ध्यान से देखो, लगेगा जैसे वो बाहर अब आप सुनिए कि ये सत्संग क्या था। बाद में ये जो मैंने आपको पहले बता दी ना बात ठुड्डे वाली, ये एक्चुअली बाद में हुई थी। उससे पहले क्या हुआ था, जब हमारे घर 4 बजे से सत्संग शुरू था, 3:30 बजे के आसपास, 3:30 बजे थे, मैं और अंकल तैयार हो रहे थे। तो अचानक मेरे को लगा, नहीं मैं किचन में थी, सॉरी, तैयार होके, और अंकल अंदर थे कमरे में। तो अचानक मेरे को महसूस हुआ किसी ने दरवाजा खोला है, हमारा मेन गेट। तो मेरे मन में एकदम थॉट आया कि इतनी जल्दी आ गई कोई संगत। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जय गुरु जी, भाई कोई जल्दी आ गया। तो मैंने ना लाइट खोली फटाफट, हॉल की लाइट खोली। संगत जी प्लीज इस नंबर पे ना सत्संग के दौरान कॉल मत करिए, क्योंकि ये वीडियो अटक जाता है। आप एक और नंबर है, उस नंबर पे आप कॉल करें और सत्संग फिनिश होने के बाद करें। इसमें ना फिर वो वीडियो को रिज्यूम करना पड़ता है हमें। मैं आपको क्या बता रही थी, हाँ संगत जी, उस वक्त मेरे को लगा, महसूस हुआ, जब दरवाजा ऐसे खुलने, जैसे एक दरवाजा ओढ़का हुआ होता है तो कोई हैंडल घुमाता है, अचानक से एक धम की आवाज आती है ना, अगर कोई उसको पाँव से आगे पुश करे तो मुझे लगा कि कोई संगत आई है, उसने दरवाजा, शायद उसके हाथ में कुछ होगा, मैं अपनी इमेजिनेशन कर रही हूँ। तो उसने पैर से खोलने की कोशिश की है। तो मैं कहा दरवाजा तो बंद होगा, हमने तो किसी को खोला ही नहीं अभी तक। तो 3:30 बजे हैं। तो मैं बाहर गई, मैंने पहले दरबार की लाइट खोली, क्योंकि लाइटें वाइटें सब बंद थी, हम अभी उठे ही थे, हम लोग तैयार व्यार हो रहे थे। तो मैंने फिर झांक के देखा, दरवाजा खोला, दरवाजा तो लॉक था। मैंने दरवाजा खोला और दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, किसी ने नॉक नहीं किया।
और वो जो पैर की मुझे महसूस हुई आवाज कि जैसे किसी ने पुश करके खोला हो, ठुड्डा मार के। ठुड्डा वर्ड तो मुझे बाद में आंटी के मुंह से सुनाई दिया, तब तक मुझे नहीं आइडिया था कि ऐसे कई बार होता है हमारे हाथ में सामान होता है तो हम पैर से दरवाजा खोल लेते हैं। मुझे वो फीलिंग हुई थी। तो मैं अंकल को बोली, मैंने कहा कोई था सुनो बाहर, किसी ने दरवाजा वो किया है। तो कोई नहीं था बट कोई नहीं था, तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया, हमने ना इट्स कैजुअल कि मेरा ही कोई भ्रम था। तो उसके बाद सत्संग हो गया, सत्संग के बाद लोग लंगर करके जाने लग गए। तो आंटी की आदत है ना, वो ऐसे नहीं सत्संग, वो जब पर्सनली हम बैठते हैं उनके पास तो वो बहुत सत्संग सुनाती हैं गुरुजी की बातें। तो तब उन्होंने मेरे को आप पे ना वो स्वरूप देख के बोला, कहते आंटी आज ना गुरुजी दी तुहानू बड़ी मजेदार गल सुनानी है। गुरुजी इस तरह करते सी, एक कमरे तो दूसरे कमरे जाना होंदा सी ना, गुरुजी ठुड्डा मारते सी। मैं कहा ठुड्डा, तो कहते पैर नाल खोलते सी। साक्षात बैठे हुए हैं जी। हाँ, और उन्होंने स्वरूप देख के जब बैठे दरबार के सामने आंटी, तो उन्होंने बोला आज गुरुजी ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा मेरे तो उस वक्त आप सोचिए मेरा एकदम मतलब हाथ पैर वो ठंडे, क्योंकि वो आवाज, वो जो ठुड्डा बोला उन्होंने कि पैर से खोला, वो आवाज मुझे 3:30 बजे महसूस हुई थी कि दरवाजे पे कोई है। सच में संगत जी वो अमेजिंग एक्सपीरियंस था गुरुजी के। और तब उन्होंने ये बात मेरे को जब बताई, मेरे हंसी भी बहुत आई कि मैं कहा वाह गुरुजी कमाल हो, तो सी गुरुजी कमाल है गुरुजी सच में। और इस तरह से ना ये बड़ा अलग टाइप का एक्सपीरियंस था कि वो फील करवा देते हैं आपको, होता कुछ भी नहीं है। और कभी अगर देखिए हम गुरुजी के साथ जुड़ रहे हैं, हम उनको मानते हैं, तो हमें लगता है ना गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं, ये हम सब जानते हैं। बट जो लोग, जब गुरुजी पे हमारा विश्वास थोड़ा सा कम होता है, हम जुड़ते हैं गुरुजी से जब हम नए नए होते हैं, तो उस वक्त ये लगता है ना कि जैसे ये सब कोइंसिडेंस है या हमारे मन का भ्रम है। बट संगत जी ये धीरे धीरे गुरुजी क्लियर कर देते हैं कि ये हमारे भ्रम नहीं है, ना ही हमारी लाइफ में कुछ कोइंसिडेंस होता है, वो सुप्रीम पावर ही सब कुछ करती है। और ये आपको फील करवाते हैं वो, और ये आप इंटरनली महसूस कर सकते हैं उनकी प्रेजेंस को। दिखाई कुछ नहीं देता है। अगर कोई बोलता है कि गुरुजी आपके ऐसे हैं वैसे हैं, दिखता ये आपको ऐसे फील, तो हम इसको बयान भी नहीं कर सकते वो एहसास को। ये वो घड़ी के घड़ी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो फीलिंग आती है, चली जाती है। मेरे को कैसे दिखे हाँ, अंधेरे में गुरुजी के स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। तो ये अंकल को, तो ये अंकल ने शायद शेयर भी किया है ये अपना एक्सपीरियंस। तो वो कल देखते हैं, कल अंकल को मैं बोलूँगी दोबारा से शेयर करेंगे, जो नई संगत है वो भी सुनेंगी। सो आज लेट भी हो रहा है 8 बजने वाले हैं, सबको काम पे जाना होगा, वीकडे है आज। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी सबको, जय गुरुजी। सिमरन आंटी थैंक यू साथ में जुड़ने के लिए, राधिका आंटी थैंक यू, अंजना आंटी, नीलू आंटी थैंक यू सो मच, नरेंद्र अंकल, ममता आंटी, मनीषा अरोड़ा आंटी थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू। सारे अंकल आंटी को रुचि आंटी, संगीता आंटी, वंदना आंटी थैंक यू, और सारे अंकल आंटी जो भी देख रहे हैं। और नई संगत को ये क्लियर करें कि कई बार लोग, मेरे को ना एक फ़ोन आया था, मैं आपको सच्ची बताऊं, वैनकूवर से था, थोड़े हो गए 15-20 दिन पहले, कोई बंदे ने देखा होगा, तो उसने मेरे को वहाँ से कॉल किया जानने के लिए। तो गुरुजी का कोई मंदिर है यहाँ कनाडा में। तो मैंने कहा अंकल वहाँ सत्संग तो बहुत होते हैं टोरंटो और वैनकूवर में। मैंने जब उसको इतनी बात ही बोली ना, उनको अंकल बोला ना, तो ही सेड कि मैम आई एम नॉट अंकल, योर अंकल। तो मुझे लगा कि ये बंदा तो चिढ़ गया एकदम। तो मैंने उसको बोला, फिर मैंने लिखा उसको, उसने फिर ना फ़ोन बंद कर दिया। तो मुझे लगा कि शायद वो गुस्सा हो गया, उसको पता नहीं था कि हम अंकल आंटी क्यों बोलते हैं। बट हम जब से जुड़े हैं गुरुजी से, आई डोंट नो क्या था, बट जब शुरू में हम गुरुजी से जुड़े तो हमें जो पहले की जो संगत है उन्होंने यही बोला कि गुरुजी के दरबार में चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सबको अंकल आंटी ही कहना है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई थी इस बात को कि अंकल आंटी क्यों कहना, ये तो मेरे से छोटा है, अब अखिल मेरा बेटा है तो उसको मैं क्यों अंकल बोलूँगी। तो वो कहते हैं नहीं, अंकल आंटी बोलने से कोई रिलेशन नहीं बनता है, हमें यहाँ सोशलाइज नहीं होना है, हमने किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई दीदी भैया भाभी करेंगे तो फॉर्मेलिटीज आ जाएंगी, इसीलिए अंकल आंटी बोलना है।
ये बात मुझे वो आंटी ने एक्सप्लेन किया था कि अंकल आंटी क्यों बोलना है, इसीलिए आप सबको अंकल आंटी बोलें संबंध ताकि बन जाते हैं कोई संबंध हमें किसी से नहीं बनाना। सो ये सिर्फ हमारा संबंध गुरु जी के साथ होना एक चाहिए। इंसानियत का संबंध जरूर बनाना। सो और थैंक यू सो मच। अपना बस अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करें गुरु जी के साथ, यही अरदास करते हैं। और आप लोग सब मिल के ये अरदास करें कि हम सब की जो बॉन्डिंग है वो गुरु जी के साथ बहुत गहरी हो। ये एक ऐसा धागा है जो कभी ना टूटे। ये डोर, ये जो उनके तार हैं वो हमारे जुड़े रहें बस ये तार। फाड़ कर ना तो थैंक यू, शुक्राना जी के गुरु जी की बातें कभी खत्म नहीं होंगी, एक बात से दूसरी बात निकलती जाएगी। पर आज्ञा ले लीजिए गुरु जी से, बहुत लेट हो रहा है। कल मिलेंगे और कल फिर मिलेंगे हम अमृत वेला में सुबह 5 बजे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय।